اور سب سے پہلے بات کریں گے ایودھیا تنازع پر سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کی۔ سپریم کورٹ نے ایودھیا تنازع کو ثالثی کے ذریعے حل کرنے کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 5 ججوں پر مشتمل آئینی بینچ نے جسٹس ابراہیم خلیف اللہ کی سربراہی میں 3 ثالثوں کا ایک پینل تشکیل دیا ہے۔ اس پینل میں سماجی کارکن اور آرٹ آف لیونگ کے بانی شری روی شنکر اور سینئر وکیل شری رام پنچو بھی شامل ہیں۔ ثالثوں کے پینل کو 1 ہفتے کے اندر اپنی کارروائی شروع کرنی ہوگی۔ 4 ہفتوں میں اسے عدالت میں اسٹیٹس رپورٹ اور 8 ہفتوں میں حتمی رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔ ثالثی کے عمل کو نہایت خفیہ رکھا جائے گا اور میڈیا کو اس کی رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایم آئی ایم صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے ایودھیا تنازع کو ثالثی کے ذریعے حل کیے جانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن شری روی شنکر کو ثالث مقرر کیے جانے پر سوال اٹھایا ہے کہ وہ جس کو چاہے میڈیٹر اپوائنٹ کرے۔ ان 3 میڈیٹرز میں ایک میڈیٹر کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ نے خود کیری کیا ہے، تو وہ نیوٹرل کیسا رہیں گے؟ وہ نیوٹرل کہاں ہے؟ وہ نیوٹرل تو نہیں رہیں گے۔ وہ 4 نومبر کو انہوں نے تھریٹن کیا ہے وائلنس کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو سیریا بن جائے گا، آپ گڈ ول گیسچر کے طور پر چھوڑ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر میڈیٹر تو نیوٹرل ہونا چاہیے نا۔ ہم ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ یہ میڈیٹر نیوٹرل رہے گا، وہ اپنے دماغ سے ان تمام چیزوں کو نکال دیں گے جو انہوں نے کہی تھی کہ سپریم کورٹ نے جس کو نامینیٹ کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے، وہ اس ایز اے میڈیٹر کے رول کو سمجھیں گے۔ وہ میڈیٹر ہے، وہ پارٹی نہیں ہے ڈسپیوٹ میں، تو وہ میڈیشن کے اس اعلیٰ ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، ہم یہی امید کر سکتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ نے میڈیشن کا جو ایفرٹ کیا ہے، میڈیٹر اپوائنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ 4 ہفتے کے بعد انٹرم رپورٹ دی جائے، میں امید کرتا ہوں کہ پرسنل لا بورڈ وہاں پر جائے گا اور جو بھی ہوگا فیض آباد میں اس کا ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ کانفیڈینشیل ہوگا، میڈیا کے سامنے نہیں آئے گا یہ بات، تاکہ پھر الیکشن چلتے رہے گا، کوئی ہمارے ایسا پولیٹیشین کو روٹی نہ سیکے اپنی، تو یہ بھی اچھا ہے۔ مگر ہم امید کر رہے تھے کہ ایسے آدمی کو میڈیٹر نہیں بنایا جائے گا جس کا اسٹیٹڈ پوزیشن پبلک ڈومین میں ہے۔ میڈیشن از این انٹرم رپورٹ، دس از ناٹ آربیٹریشن۔ آربیٹریشن از ون wherein if Paul is made the arbitrator and he gives a judgment, then that has to be accepted by the court. So this is a mediation. So both the parties will put forward their views, and then if something comes out of it, then they'll report it to Supreme Court. لیکس ہوگی، گورنمنٹ کے خلاف ہوگا تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دھمکی دی جائے گی۔ اب جب الیکشن ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کریں گے بی جے پی کے لوگ، کیونکہ ایک ایگریکلچر منسٹر 300، امت شاہ 250، جنرل صاحب کہتے ہیں کہ چونٹی، ہوم منسٹر کہتے ہیں NTRO، اور پھر MEA کہتا ہے کچھ بھی نہیں، ایئر فورس کا چیف، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کریں گے لوگ، مگر سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل رہنا چاہیے، کانفیڈینشیل میڈیشن ہوگا، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جو بھی کرے گا وہ تو کنٹینٹ میں آئے گا، وائلیشن ہوگا۔ دیکھیے چناؤ میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ تو آپ کو اجازت نہیں دیتا، وائلیشن ہوگا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا کہ اگر کوئی مندر کے نام پر ووٹ مانگے گا یا مسجد کے نام پر مانگے گا تو وہ تو وائلیشن ہوگا، اور اگر بڑے سے بڑا نیتا کرے گا تو اس کے اوپر بھی کیس بک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مندر کے بات کر کے ووٹ مانگے گا یا پھر مسجد کی بات کرے گا تو دونوں پہ کیس بک ہونا چاہیے، وائلیشن ہوگا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے IFS عہدیدار ڈاکٹر اوصاف سعید کو سعودی عرب میں ہندوستان کا سفیر بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر اوصاف سعید فی الحال سیچلس میں ہندوستانی سفیر ہیں۔ اس سے قبل وہ قونصل جنرل متعینہ جدہ، قونصل جنرل متعینہ شکاگو اور قونصل جنرل حج امور کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کئی سفارتی عہدوں پر اہم ذمہ داریاں بھی نبھا چکے ہیں۔ اوصاف سعید عثمانیہ یونیورسٹی سے گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں۔
तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मेदक और मल्काजगिरी हल्के लोकसभा में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है, बीजेपी ने आवाम को मायूस कर दिया है। కాంగ్రెస్ పార్టీకి పొరపాటున ఎక్కడైనా ఓటు వేసినట్టయితే ఆ ఓటు మోరిలేసిన దాంతో సమానమనే మాట కూడా గ్రామాన తప్పకుండా మన ప్రజలందరికీ చెప్పవలసిన అవసరం కూడా ఉంది. బీజేపీకి అడ్రస్ లేదు. తెలంగాణలో బీజేపీ ఎంత ఎగిరినా ఎంత దుంకినా అమిత్ షా మీటింగులు పెట్టినా నరేంద్ర మోడీ మీటింగులు పెట్టినా వాళ్ళ వల్ల అయ్యేదేమీ లేదు. మన పోటీ ఖచ్చితంగా ఎక్కడికక్కడ రాజకీయ ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీతో. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిస్తత్వలో ఉన్నది. పోటీ చేసేందుకు అభ్యర్థులు దొరుకుతలేరు. మెదక్ పార్లమెంట్ ఇంతకుముందు ఫారూక్ హుసేన్ గారు అన్నట్టు ఏకగ్రీవమైన ఆశ్చర్యం లేదన్నారు. ఏకగ్రీవం అయితేనైతే మరి పోటీ లేదు, మెజారిటీ పంచాయతీ లేదు. కాబట్టి దయచేసి మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఈ 30-40 రోజుల పాటు ఎన్నికలు ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ప్రకటన ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఏప్రిల్ మాసంలో ఎన్నికలు ఎప్పుడనేది ఖరారైన తర్వాత మండలాల వారీగా గ్రామాల వారీగా బూత్ల వారీగా ఎక్కడికక్కడ సమిష్టిగా పనిచేసి అఖండమైన మెజారిటీని ముఖ్యమంత్రి గారి పార్లమెంట్ స్థానంలో అఖండమైన మెజారిటీని గెలిపించుకోవాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ सदर कांग्रेस राहुल गांधी कल तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज करेंगे। राहुल कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर की अहम स्कीम अक़ल तरीन आमदनी जमानत स्कीम की तफसीलात का भी ऐलान करेंगे, जिसके तहत हर गरीब को मरकजी हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जाएगी। जलस्याम में कांग्रेस के बूथ और मंडल सतह के वर्कर्स को शामिल किया जाएगा ताकि लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आए। रंगारेड्डी, वकाराबाद, हैदराबाद, महबूब नगर और दीगर अजला से 30,000 से ज्यादा कारकुनों की शिरकत मुतवक्के है। जिला सदूर और अरकान असम्बली के अलावा साबिक अरकान पार्लियामेंट व असम्बली को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी दौरान अक़लियतों की बड़ी तादाद में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए आज कांग्रेस के अक़लियती कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली है। निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट कविता ने यह बात कही। तेलंगाना में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शी टीम्स के अलावा भरोसा मराकज़ कायम किए गए हैं जो बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। कविता ने कहा कि एमरजेंसी हालात में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए डायल 100 की सहूलत भी फराहम की गई है। इसके अलावा तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हाई आई एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। रुकन पार्लियामेंट कविता ने हैदराबाद में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम करदा नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా కన్సిస్టెంట్గా ప్రతి సంవత్సరం మహిళల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం అన్ని రంగాల్లో కూడా కృషి చేయడం జరుగుతుంది. అది వారిని ఆర్థికంగా నిలబెట్టడం కోసమైనా, వారి ఆరోగ్య భద్రత విషయంలో అయినా, వారి యొక్క భద్రత విషయంలో అయినా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మహిళల మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధతోని పనిచేయడం జరుగుతుంది. మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఏ భయం ఉంది అయిపోయింది. ఇంతకుముందు పోలీస్ అంటే చాలా అదర్ స్టేట్లో వచ్చి ఇక్కడ అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని వెళ్తున్నారు. పోలీస్ దగ్గర పోవాలి అంటే చాలా భయం ఉంది. ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ చేస్తే అంటే రికార్డు ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వితిన్ 3 minutes 4 minutesలో పోలీస్ అంటే ఇమీడియట్ వెళ్తున్నారు అక్కడ స్పాట్లో. అంటే ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మా తెలంగాణ స్టేట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా యాక్టివ్ ఉంది. ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత 2014లో మొట్టమొదటిసారిగా గవర్నెన్స్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెచ్చినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి రిఫార్మ్ మనం షీ టీమ్స్ అని చెప్పక తప్పదు. మన తెలంగాణ స్టేట్లో ఎన్నో ఇనిషియేటివ్స్ మేము తీసుకున్నాము. దాంట్లో భాగంగా షీ టీమ్స్ కానీ, భరోసా సెంటర్స్ కానీ, చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ కోర్ట్, హాకాయ్ మొబైల్ అప్లికేషన్, ఆపరేషన్ ముస్కాన్, స్మైల్, మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ ట్రేస్ చేసుకోవడానికి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టూల్, విమెన్ ఆన్ వీల్స్, విమెన్ కమాండోస్, సీసీటీవీస్, ఇంకా ఎన్నో ఇనిషియేటివ్స్ మన తెలంగాణ స్టేట్ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు లాస్ట్ 3-4 yearsలో పర్టికులర్గా హైదరాబాద్ సిటీ ఎవ్రీ ఇయర్ దెర్ ఈజ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్ by 6 to 8%.
లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ మంత్లో లాస్ట్ వీక్లో ప్రెస్ మీట్లో కూడా మీ అందరి సమక్షంలో పర్టికులర్గా క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్, ఈచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ విమెన్ అమంగ్ ఆల్ బిగ్ సిటీస్, ఢిల్లీ, బాంబే, బెంగళూరు, కలకత్తా, అన్ని బిగ్ సిటీస్ కంపారిజన్ తోటి హైదరాబాద్ ఇస్ ద సేఫెస్ట్ సిటీ ఫర్ విమెన్. तेलंगाना महिला कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम आलमी योम ख़वातीन पार्टी दफ्तर गांधी भवन में मनाया गया। इस मौके पर ख़वातीन के लिए सियासी तरबियती कैंप मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में तेलंगाना कांग्रेस सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी, खातून अरकान असम्बली और साबिक खातून वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, तेलंगाना ख़वातीन के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है, काबीना में ख़वातीन को जगह नहीं दी गई है। उन्होंने TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम आलमी योम ख़वातीन के ज़िम्न में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर ख़वातीन के तालीमी मसाइल और हमारी जिम्मेदारियाँ और अदबी इजलास व मुशायरा उर्दू घर मुगलपुरा में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर मजीद बेदार साबिक़ सदर उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने की और तंजीम के सदर आरिफुद्दीन ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। में तहफ़्फ़ुज़ उर्दू का मकसद व मंशा ये है कि ख़वातीन इंतहा से ज़्यादा खुश व खुर्रम रहें और उनकी तालीमी मसाइल जो हैं और लड़कियों के जो तालीमी मसाइल हैं उसके ऊपर रियासती हुकूमत हो कि मरकज़ी सरकार ये आइंदा के लिए जो भी विमेंस डे मनाया जाता है आने वाले 2020 ईस्वी में बहुत अच्छा और खुशाइंद हो, ये हमारी नेक तमन्ना है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर HMDA की जानिब से तकरीब मुनक्किद हुई। NTR गार्डन में मुनक्किदा तकरीब में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान ख़वातीन ने डांस किया। ख़वातीन ने मर्दों के बराबर हुकूक फराहम करने पर जोर दिया। ख़वातीन का कहना कि अक्सर इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। HMDA ख़वातीन ने लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने की सरपरस्तों से अपील की। फिल्म अदाकारा व साबिक़ रुकन असम्बली जयसुधा YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। हैदराबाद में वाक़ जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह लोटस पाउंड पहुंचकर उन्होंने जगन की मौजूदगी में YCP में शामिल हो गई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंजानी YS राजशेखर रेड्डी ने उनके सियासी गुरु हैं। उनके कहने पर ही वो सिकंदराबाद असम्बली हल्के से मुकाबला करते हुए रुकन असम्बली मुंतखब हुई थी। अब जगन मोहन रेड्डी के मशवरे पर अमल करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगी। AP में डाटा चोरी और वोटर्स के नामों में उलटफेर के मामले पर BJP वफ्द ने मरकजी इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की। We have requested the Election Commission of India for their immediate and expeditious action in the following manner. One, we have sought a special revision of electoral rolls in Andhra Pradesh to remove all the inaccuracies and to nullify all the fraudulent efforts of Telugu Desam Party. Number two, we have requested the Election Commission of India to send the top functionaries of state police, Andhra Pradesh State Police, out of the state and conduct elections under the supervision of police officers, which Election Commission of India can rely upon for their unbiased functioning. 3, we have asked the Election Commission of India to immediately order that all those ground level workers of the TDP who are functioning as Sadhikara Mitras, their services to be discontinued immediately. Number 4, we have requested Election Commission of India to take all appropriate actions in regard to the data theft, register whatever cases and take appropriate actions to ensure that those who have put the people of Andhra Pradesh at a grave risk by leaking their personal data, action should be initiated against them. The Election Commission of India had listened to our complaints, our observations, and they had
they had promised to look into all the issues that we have raised. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के साथ साथ बावकार ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात फराहम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन को तहनीत पेश की। ఒంటరి మహిళ కూడా బాధపడకుండా ఒంటరి మహిళకు కూడా పింఛనిచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో మన ప్రభుత్వం. సంపాదన కాదు, మీరు సంపాదించిన డబ్బుల్లో 10 రూపాయలు కుటుంబానికి ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఉండే ఆనందం ఇంకో దాంట్లో ఉండదు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక ఆనందమే కాకుండా ఒక గౌరవం. ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారంటే 10 రూపాయలు సంపాదించినప్పుడే ఆ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. ఆ రెస్పెక్ట్ని, ఆ గౌరవాన్ని మీకు అందరికీ ఇవ్వాలనేది నా ఉద్దేశం. నేను ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా. करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में आज यौम ख़वातीन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से वज़ीर बराए सेहत NMD फारूक ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ख़वातीन से ख्वाहिश की कि वो हर मैदान में कामयाबी हासिल करते रहें, क्योंकि आज के दौर में मर्द और ख़वातीन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। इस मौके पर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल सुपरिंटेंडेंट के अलावा रुकन असम्बली करनूल SV मोहन रेड्डी और दीगर शरीक रहे। करनूल के सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन में आलमी यौम ख़वातीन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से महिला DSP ने शिरकत की। DSP ने ख़वातीन को हर मैदान में आगे आने का मशवरा दिया। आज दुनिया में मर्द ख़वातीन में कोई फ़र्क नहीं देखा जाता। इंडिया के हर बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े पोजीशंस पर ख़वातीन का कब्जा है। करनूल के उस्मानिया कॉलेज बराए ख़वातीन में बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता स्टूडेंट्स ने अपने फ़न का मुजाहरा किया और ख़वातीन की अहमियत को भी उजागर किया। आज हम लोग उस्मानिया वुमेन्स पैरेलल सेक्शन में वुमेन्स डे मना रहे हैं। आज बच्चों ने पोस्टर मेकिंग एंड गारमेंट मेकिंग में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज करे हैं और हमें उनको प्राइजेस देकर उनकी हौसला अफजाई की है। मैं बहुत फ़ख्र से बोल सकती हूँ कि हमारे तलिबा बहुत मेहनत करके पूरे सेमिनार्स में और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में और हर फील्ड में हिस्सा लेके बढ़ चढ़ के मेहनत करके कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। नेल्लूर रूरल के YCP MLA के श्रीधर रेड्डी ने YCP कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने आधी रात को पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ओहदेदारों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पुलिस ओहदेदारों के साथ मकामी MLA बहस पर उतर आए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 दिनों से YCP कारकुनों के खिलाफ मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत किया जा रहा है। YCP रुकन असम्बली ने मकामी पुलिस पर रियासती हुकूमत के दबाव में काम करने का इल्जाम आयद किया। आधुनिक इलाके धन्नापुर में दारुल उलूम मदनी अशरफ में एक जलसे का इनेकाद अमल में आए, जिसमें रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से मुहद्दिस आज़म मिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मुरीदीन शरीक रहे। इस मौके पर मुहद्दिस आज़म मिशन से मुताल्लिक़ फलाही व दीनी खिदमात पर मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। मियाँ अशरफ अल जिलानी कछुचवा शरीफ ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने बताया कि मुहद्दिस आज़म मिशन का क़याम अमल में आए तकरीबन 40 साल का अरसा होने जा रहा है और इस मुहद्दिस आज़म मिशन का मकसद आम ख़ास की मदद करना, गरीब बच्चों की तालीम का ख्याल करना, मरीजों को सेहतियाबी के लिए मदद करना, तालीम व कारोबारी इमदाद फराहम करना, कौम को दीन की राह पर लाना वगैरह शामिल है। इसी गर्ज से हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ रियासतों में मुहद्दिस आज़म मिशन की शाखें चलाई जा रही हैं। इसीलिए हमारा स्लोगन है अमन व मोहब्बत की छाओं में खिदमत सुबह व शाम करें, आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम नबी को आम करें। आतंक से खुद उनका नुकसान है, उनके मुल्क का नुकसान है, उनकी कम्युनिटी का नुकसान है। इसी तरह बहुत से गुनाहों में, करप्शन में लोग शरीक हो गए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज दिया था, प्रॉफिट ऑफ पीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में नाकाम हुआ है। पहले यही पैगाम जब हमारे बुजुर्गों ने
दूसरे मुल्कों से आकर दिया, तो आप देख रहे हैं भारत में भी मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले नहीं थे, मगर उनका पैगाम सुनने के बाद अगर एक मोइनुद्दीन चिश्ती उस पैगाम को लेकर, ये उस पैगाम का असर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के मैसेज की कशिश है कि जिसने उस पैगाम को सुना वो उन पर। रिहाब इंडिया फाउंडेशन अदूनी की जानिब से मुस्लिम अक़लियती इलाके में मुफ्त ट्यूटोरियल का इफ्तिताह अमल में लाया गया। हलीम सिद्दीक ने इफ्तिताह किया। इस ट्यूटोरियल को कायम करने का अहम तरीन मकसद मुस्लिम अक़लियतों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाना है। फाउंडेशन के जानिब से आदोनी माइनॉरिटी कॉलोनी में एक ट्यूशन सेंटर खोला गया है कम्युनिटी सेंटर के नाम से, जिसमें जो है बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी बिना पैसों के, बिना फीस के। लास्ट 3-4 महीनों से जो है हम वहाँ पे मुसलसल सर्वे कर एक रिपोर्ट तैयार कर हमारे फाउंडेशन को दिल्ली हेड ऑफिस को भेजा गया, और उसके बाद 3 महीनों के बाद जो है अभी हमने आज सेंटर को ओपन किया है, और इसमें बहुत सारे बच्चे आने के लिए रेडी है। जैसा कि कोई कम्युनिटी की कोई रिलीजन बेस्ड सेंटर नहीं है, कोई भी आके पढ़ सकता है यहाँ पे ट्यूशन, और फ्री टीचर्स भी रखे गए हैं, इंटरमीडिएट और डिग्री क्वालिफाइड टीचर्स को रखा गया है। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इस सेंटर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। करनूल के उर्दू घर में कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में करनूल के तमाम सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग में आने वाले असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में सेकुलर जमात के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने का फैसला किया गया। शादी घर करनूल में कुल हिंद जमाती इजलास की मुनक्किद हुआ है। शहर करनूल की सारी सेकुलर तंजीमों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की है, और ये आज का इजलास इस मकसद से है कि आने वाले 2019 के जो इंतखाबात हैं उसमें सेकुलर जहन रखने वाले और इंसानी बुनियादों पर इंसानी अक़दार और उनके अखलाक की और उनकी बुनियादी ज़रूरतों के पेश नज़र काम करने वाले मुखलिस नुमाइंदों को वोट दिया जाए, और इस मुल्क को जो इसकी एक तहजीब है गंगा जमनी तहजीब पर जिसकी वजह से ये मुल्क हमेशा ही सारे आलम में बहुत ऊंचा समझा जाता रहा है, और आज वो अपनी पटरी से नीचे उतरता नजर आ रहा है। इसलिए इसकी गंगा जमनी तहजीब को फिर से दोबारा कायम करने और इसमें चमक दमक दिखाने के लिए सेकुलर जहन के लोगों ने बड़ी फिक्र की है, और इस फिक्र के साथ ये कोशिशें करने का अहद किया है कि आने वाले इंतखाबात में ऐसे काम करेंगे कि हमारा ये मुल्क सेकुलर जहन रखने वालों की हुकूमत के तहत चलाया जाए और इंसानी अक़दार के साथ इसको लिया जाए। बस यही आज के इस इजलास का मकसद है। जो पुलवामा में हमला हुआ है इसको शिद्दत के साथ हम कंडम करते हैं, और हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस हमले के पीछे जिनका हाथ है उनकी सख्त साजिश है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और हुकूमत भी लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश न करे बल्कि मजलूम तबकात का साथ दें, और जो हुकूक मुसलमानों को और मजलूम तबकात को मिलना है वो हुकूक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि DTH या केबल नेटवर्क पर अपना पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्यारा चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से राब्ता कायम करें या ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।